Good morning, my dear juniors. I hope you all are fine with the blessings of God. Myself Priyanka Sarkar, and today let's start the day with the revision of my wall notes. सबसे पहले मैं अपने वॉल नोट्स के रिवीजन से अपने डे को स्टार्ट करती हूँ एंड आफ्टर दैट मिलते हैं ब्रेकफास्ट टाइम पे.
teacher with a cup of tea. Good evening, everyone. Good evening, everyone. I hope you all find the best of God. Now, thank you for joining this video. I'm clearing the assignment questions to all. So, from my point of view and for others' point of view, I have noticed that there was a feeling that the assignment questions are very and assignment questions are not assignment questions solved. And yes, I felt the other questions were assignment से direct PT, assignment questions are match किया. And for me, यहाँ पे select questions. So, I think we can go for my exam. So, this very much something very function work. And then when you say it is telling you about it. And then what one question to that? The question is using tree diagram to organize how we can organize our leaves, how we can organize the tree, and then we can just make it a section is it can be this question is explain anything with the experience by the second language user in learning English vocabulary. So as a second language user, we may find a few stumbling blocks in not Chinese language. In addition, if I look at a few of these difficulties, one words meaning humans and the meanings of the words which have the same spelling and pronunciations but different meaning in their different context. They have different meaning in their different context. So the one sentence is the word love has different meaning. Over time, you might have one to love more, little love more than love. Seeing the picture of being that love most and Maharaj feel and then and to play off, you have to be with love in the back. So these are my suggest you to your two paragraphs together to make anything more concept. So what is common using for the word? Yes, you have got it right. This is pronunciation for both the words and exactly the same but written from spelling opposite. So you know what is different? The spelling of English is defined in context in the two what is it? So for the words, I will find different spelling different meanings and different to the word. So क्या बोलेंगे किसी भी वर्ड को वर्ड में होता है यानी कि हम प्रोनाउंसिएशन भी वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन के साथ बात नहीं करेंगे और नहीं करेंगे अगर और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग डिफरेंट है नॉट साइज है तो उनको भी डिफरेंट है तो उनको डाउट करेंगे एंड देन यू होगा नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी स्टेप्स इन प्रोसेस अक्रॉस राइटिंग. Okay, welcome back to my channel, everyone. And now at the end of the day, I mean day end नहीं हुआ है अभी भी I will have some break और उसके बाद में डिनर करूँगी एंड देन आफ्टर दैट जो भी मैंने पढ़ा है या जो भी मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा गैप कर दिया तो उस टॉपिक को या उस सब्जेक्ट को तो उसको थोड़ा बहुत मैं रिवाइज़ करके सोऊंगी बट उसको मैं ब्लॉग में कवर नहीं कर सकती बिकॉज़ उस टाइम तक फ़ोन में बैटरी भी नहीं रहता है तो इस वजह से फ्रॉम टुडे जो भी ब्लॉग का अपडेट रहेगा वो सिर्फ इवनिंग तक ही रहेगा एंड आज भी टिल इवनिंग मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे ही लेक्चर्स कवर कर लिए रिवाइज़ कर लिए एंड जो मेरा कल का एग्ज़ाम है क्योंकि कल का एग्ज़ाम भी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो लास्ट एग्ज़ाम है ग्रेजुएशन का एंड उसके बाद में ईयर एंड एग्ज़ाम होता है तो उसके बाद में फिर मेरा इस ईयर तो कोई एग्ज़ाम नहीं होगा हैंस मैं बहुत अच्छे से अपना प्रिपरेशंस कर पाऊँगी इसी वजह से उसके लिए मेरा 80% ऑफ द टाइम लग गया. कल का जो एग्ज़ाम है उस पर मैंने 3 सैम्पल सेट्स किए एंड देन उसके ओवरऑल एक रिव्यू भी किया 2 चैप्टर को फुली रिवाइज़ किया एंड लेट्स सी इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं करूँगी क्योंकि जितना ज़्यादा मैं कर रही हूँ उतना मैं कंफ्यूज भी होती चली जा रही हूँ इस वजह से इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं करूँगी. अब लेट्स सी अब क्या होता है कल. अब एग्ज़ाम नहीं जो होना है अब एग्ज़ाम में ही होगा क्योंकि जितना वो क्लोज आएगा और जितना ज़्यादा बुक को पलटेंगे ना उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा. सो इस वजह से अभी फ़िलहाल आई रियली वांट टू रीड दैट सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मुझे बोरिंग लग रहा है एंड फिर भी मैंने नीट प्रिपरेशंस कंटिन्यू रखा. केमिस्ट्री के भी मैंने रिविजन्स किए अपने रिएक्शंस के एंड फिर मैंने बायोलॉजी के भी जितने सारे लेक्चर्स हो पाए बीच में मैंने बोर्डिंग विद ग्रेजुएशन बीच में मैंने बहुत सारे रिवाइज़ कर लिया. फिज़िक्स का मैं नहीं कर पाई बट कल मेरा ग्रेजुएशन एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है एंड उसके बाद में मैं उसको कंटिन्यू करूँगी
एंड आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एंड वन मोर थिंग, आई गॉट अ मैसेज टुडे, ऐसा मेरे को कहीं से किसी यूट्यूबर को मैं बहुत फॉलो भी करती हूँ, बट उसी वीडियो के थ्रू मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिला दैट आई वाज टेलिंग कि बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपरेशंस के साथ साथ में यूट्यूबर बन रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही ऐसा बोल रही है, बहुत सारे लोग ये चीज़ बोलते हैं, बट लेट मी टेल यू, यूट्यूब पर कुछ भी अपलोड करने का मतलब यूट्यूबर बनना नहीं होता है, ठीक है। और जैसे देखो, मैं इस चीज़ को माइंड में नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं भी अपलोड कर ही रही हूँ, तो मैं भी तो अपलोड कर ही रही हूँ, तो इसका मतलब मैं भी उसी कैटेगरी, मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ, तो फिर इसका मतलब है कि मैं भी उस कैटेगरी में आ गई कि मैं भी जो है यूट्यूबर बनने जा रही हूँ। तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट लाइक दैट। मतलब किसी भी इंसान को कुछ भी आप बोलो तो सोच समझ करके बोलो। आई रियली डोंट नो व्हाई पीपल यूज टू स्पीक आउट अबाउट दिस, बट यार उन्हें कोई हक नहीं है किसी भी इंसान के बारे में कुछ भी बोलने का, कि आप किसी के बारे में भी कुछ भी बोल दो कि या तो तुम यूट्यूबर बन लो या तो तुम डॉक्टर बन लो। ऐसा नहीं है, हर इंसान की स्ट्रैटेजीज अलग होती है, हर इंसान का कंफर्ट जोन अलग होता है, और हर इंसान किससे बेनिफिट ले ले और कहाँ पहुँच जाए ये आप बता नहीं सकते हैं, और आप उसको जज नहीं कर सकते इस बेसिस पे कि वो अपलोड कर रहा है तो वो यूट्यूबर ही है। मैं भी अपलोड कर रही हूँ एंड नॉट बिकॉज कि मुझे यूट्यूबर बनना है, मैं अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शेयर करना है, दैट्स इट। आई रियली डोंट हैव एनी फ्रेंड अराउंड माई सेल्फ, एंड बिकॉज मुझे नहीं अच्छा लगता है फेक लोगों के बीच में रहना, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि फ्रेंड्स आर नेवर फ्रेंड्स, क्योंकि वो सिर्फ आपका फ़ायदा उठाएंगे चले जाएंगे। आई रियली डोंट नो, मेरे लाइफ में ऐसा हुआ है, इसलिए मेरे साथ कोई फ्रेंड नहीं है, वो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। द सेकेंड थिंग इज़ दैट ऑन द सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया पे भी फ्रेंडशिप करके क्या करेंगे, हाई हेलो, है ना, वाई टू वेस्ट द टाइम। एंड सोशल मीडिया पर भी आई डिडंट प्रेफर एनी काइंड ऑफ फ्रेंडशिप विद एनी पीपल। सो इन दैट केस मेरे लिए जो यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो अगर कोई सब्जेक्टिव चीज़ों को लेकर के यहाँ सब्सक्राइब किया है तो डेफिनेटली वो यहाँ फ्लर्ट करने के लिए तो सब्सक्राइब नहीं ही किया होगा, एंड वही मेरे फ्रेंड्स हैं। तो मैं बस अपने अपडेट उन फ्रेंड्स को देने के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके रिलीफ के लिए मैं ये करती हूँ, एंड मुझे अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी को इसमें गाइड कर रही हूँ या किसी को मिसगाइड कर रही हूँ, मुझे गाइड करने का या मिसगाइड करने का कोई भी शौक़ नहीं है। अगर मैं अभी जैसे कि मैं नीट का प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, तो मैं अभी उससे रिलेटेड ब्लॉग्स में अपडेट कर रही हूँ। अगर मैं दोनों में से किसी भी एक कोर्स में कंटिन्यू कर जाऊँ, अगर मेरा नीट में हो जाए तो मैं उससे कंटिन्यू कर जाऊँ, या मैं मास्टर डिग्री को लेकर कंटिन्यू कर जाऊँ, बीएड को लेकर कंटिन्यू कर जाऊँ, मैं कोई भी चीज़ को लेकर के कंटिन्यू कर जाऊँ, मेरे ब्लॉग में मैं उसी चीज़ को अपडेट करूँगी, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है कि मेरा जो पूरा दिन बीता उस दिन में मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। एंड आई रियली डोंट थिंक कि एक्सपीरियंस शेयर करने का हक सिर्फ उन लोगों को होता है जो सक्सेसफुल होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्सपीरियंसेस आपके साथ में, अच्छी एक्सपीरियंसेस सबसे ज़्यादा वही शेयर कर सकता है जो फेलियर है, वो आपको बता सकता है कि आगे गड्ढा है, क्योंकि जो फेलियर है वही आपको आपकी गलतियों को नज़र दिखा सकता है। हेंस मेरा मोटिव है लोगों को वो दिखा देना। आई रियली डोंट नो, आई एम नॉट अ सक्सेसफुल पर्सन, तो आई रियली डोंट नो कि मैं कितना कर पाऊँगी, बट मेरे लिए उस चीज़ को करने के लिए किसी टैग की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मेरे अंदर कुछ भी पावर है कि मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूँ एंड कुछ अच्छी चीज़ें मैं सिखा सकूँ, जैसे कि मैंने जो टीनेजर्स कल है उनके लिए अपलोड किया। सो आई रियली डोंट थिंक कि कोई लड़की को ये नॉलेज देने के लिए, ये सिखाने के लिए व्हाट इज़ अ गुड टच, व्हाट इज़ अ बैड टच, मुझे एमबीबीएस क्लियर करने की रिक्वायरमेंट है, या मुझे इस चीज़ की वेट करने की रिक्वायरमेंट है कि मैं एक बहुत सक्सेसफुल पोजीशन पर पहुंच जाऊँ और फिर वो करूँ। क्योंकि ये सारी चीज़ें संस्कारों में होती हैं, किसी डिग्री में नहीं होती। क्योंकि डिग्री में अगर होती तो बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग भी ये गलतियाँ कर बैठते हैं। बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो एमबीबीएस कॉलेज में भी ये गलतियाँ कर बैठती हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर के भी ये गलतियाँ कर बैठती हैं। सो हेंस दे
थिंकिंग इज़ नॉट अबाउट व्हाट इज़ यू गॉट बाय योर डिग्री। आपके अंदर की सोच आपका मोटिवेशन बन के बाहर आता है, जिससे आप लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हो। और इस चीज़ के लिए यू डोंट नीड डिग्री। इसके लिए आपको ना तो डिग्री की इंतज़ार करनी है, ना तो हाई पोस्ट सक्सेसफुल लाइफ का इंतज़ार करना है। आप जिस मोमेंट पे हो, आप फेल्यूर हो, आप तभी भी लोगों तक ये चीज़ पहुँचा सकते हो एंड लोगों को बहुत सारे गलत काम करने से बचा सकते हो। मेरा यही इंटेंशन है, इस वजह से ही मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करती हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे यूट्यूबर बनना है। आई रियली डोंट वांट टू बी एन यूट्यूबर। ना तो मुझे यहाँ पे यूट्यूबर बनना है और ना ही मुझे यहाँ पर आकर के अर्निंग करना है, क्योंकि आजकल तो सबसे ज़्यादा फैशन चला हुआ है ना बॉडी एक्सपोज करके कमाना। आप देखो यहाँ पे टिकटॉक 99% आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सो अगर किसी को यूट्यूबर बनना ही होता तो वो इंसान यहाँ बेवजह के स्टडी रिलेटेड चीज़ों को ले आकर के नहीं बनना चाहता, वो कोई और ही प्लेटफॉर्म उठा लेता। और अगर कोई इस प्लेटफॉर्म में है तो इसका मतलब है कि वो खुद सोच समझ करके ही है, वो खुद कंफर्टेबल है इसलिए ही है। इसी वजह से आई रियली डोंट थिंक वाई पीपल यूज टू पिन आउट ऑल द थिंग्स। मतलब वो पूरी दुनिया पे ध्यान रखते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। सो लेट इट बी। बट मुझे वो बात बहुत ज़्यादा अजीब लगा, इसलिए मैंने डिस्कशंस किया। एंड ऑल्सो वॉन्टेड टू से यू ऑल पीपल कि आपके लाइफ में जिस भी चीज़ आपको इंटरेस्ट है तो उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए किसी सक्सेसफुल लाइफ के आने का इंतज़ार मत करो, उस चीज़ को जस्ट स्टार्ट कर दो। मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि कोई बड़ा चीज़ करने के चक्कर में छोटे चीज़ों को हाथ से मत जाने देना, छोटी चीज़ों को छोड़ मत देना। जैसे मेरा इंटेंशन MBBS क्लियर करने का ये नहीं है कि मैं एक डॉक्टर बनूँ, ये है कि मैं एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर बनूँ। तो उस चीज़ के लिए अगर मैं फेल हो रही हूँ एंड इफ़ मैं जो है एकदम डिमोलाइज हो जाऊँ, डिमोटिवेट हो जाऊँ और उस दिन का इंतज़ार करूँ आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स कि भाई मेरे पास वो डिग्री आएगा और उसके बाद मैं प्रोफेसर बनूँगी और उसके बाद मैं कॉलेज पे जाकर स्टूडेंट्स का क्लास लूँगी। तो एक तो हो गया वो, और दूसरा ये हो गया कि मुझे प्रोफेसर ही बनना है ना, मुझे कॉलेज के स्टूडेंट्स को, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाना ही है ना। तो आज मेरे पास में वो डिग्री का दरवाज़ा भी नहीं खुला हुआ है, यानी मेरा MBBS में सिलेक्शन भी नहीं हुआ है। तो क्या हुआ, काम क्या है, इंटेंशन क्या है, पढ़ाना। सो लेट्स स्टार्ट विथ टीचिंग, let's start with guiding the students who are in 11th, who are in 12th, who are in 8, 9, 10, right? ये उतना बड़ा चीज़ तो नहीं है, या उसके उसके 1% उतना भी नहीं है, क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए बहुत नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन उस जर्नी का एक स्टार्टिंग ज़रूर है, उससे आपको एक एक्सपीरियंस ज़रूर ऑब्जर्व होगा, एक एक्सपीरियंस, एक स्मार्टनेस, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर ज़रूर आएगा टू टैकल अ स्टूडेंट टू स्पीक फ्लुएंटली। एंड उसके बाद में ये चीज़ को कंटिन्यू करते हुए अगर आप रह गए, राइट, तो जिस दिन वो मोमेंट आएगा कि आप फाइनली एक मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर बन के मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होंगे, सो वो स्टूडेंट्स और वो पोडियम और वो क्लासरूम आपका फर्स्ट क्लास नहीं हो रहा होगा। 10 साल पहले से आप बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके होंगे जो शायद मेडिकल स्टूडेंट्स ना हो, बट स्टूडेंट्स तो थे। सो वो सारा एक्सपीरियंस उस दिन ऐड हो रहा होगा, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को बहुत हद तक बढ़ा देगा। तो इसका मतलब यही है कि कुछ बड़ा अगर बनना है तो ये नहीं कि हम डायरेक्ट प्रोफेसर ही बन जाएंगे, आप टीचर से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। मेरे पापा हमेशा मुझे यही बोलते थे कि कुछ बड़ा अगर करना है तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उसमें छलांग मारो, छोटे अपॉर्चुनिटीज़ से स्टार्ट करो। छोटे अपॉर्चुनिटीज़ ही आपको बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ तक लेकर के जाती है। एंड डायरेक्टली आप अगर बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट करेंगे, सो आई एम सो सॉरी, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो दुनिया क्या बोलती है ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने दिल की सुनो। एंड रियली ये सारे एक्सपीरियंसेस यहाँ पे शेयर करके एंड उसके बाद में इसके वजह से मैं रिकॉर्ड करके पढ़ती हूँ, बिकॉज आई हैड टू अपलोड इट। तो उस रिकॉर्डिंग से मेरा कंसंट्रेशन काफ़ी हाई रहता है, बिकॉज मेरा फ़ोन इंगेज रहता है, तो मैं बिल्कुल भी फ़ोन का मिसयूज़ नहीं कर पाती हूँ।
एंड वो बिल्कुल भी वो मुझे इम्पैक्ट नहीं देता, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग के लिए अपना पड़ा रहता है साइड पे। सो मेरा इसकी वजह से कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हाई हुआ है एंड मेरा स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो फॉर मी, मेरे लिए ये मेरे लिए वरदान है, क्योंकि मेरा इतने साल में जो टाइम वेस्ट हुआ, माइंड का डाइवर्शन हुआ एंड एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस हुए, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हुए, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रिकॉर्डिंग मेरा यह सब कुछ हट गया। क्योंकि फ़ोन जो है उसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है तो बिल्कुल मेरा ध्यान नहीं जाता है एंड साथ में ही रिकॉर्डिंग हो रहा होता है। सो मेरा दिमाग में ये रहता है कि मेरा कलम चलते रहना चाहिए एंड कंटिन्यूटी मस्ट बी मेंटेन। तो इस वजह से कभी कभी होता है पढ़ते पढ़ते कुछ सोचने लग जाओ, मेरा वो भी नहीं होता है। साथ में ही अगर कोई घर वाले डिस्टर्ब कर रहे हों तो वो भी नहीं होता, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि रिकॉर्डिंग चल रहा है, उन लोगों का आवाज़ आ जाएगा, तो उन लोगों का भी नहीं होता है। हंस मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा वरदान है, इससे मुझे हेल्प ही हो रहा है, इस वजह से मैं अपलोड करती हूँ। सो फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।